کے رسول نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو جہیز نہیں دیا. کیوں؟ وہ حضور علیہ السلام نے ایک تحفہ اور گفٹ دیا تھا مولا علی کو. کس کو دیا تھا؟ توجہ کرنا, کس کو دیا تھا؟ سیدہ کو, بیٹی کو نہیں دیا, شہزادی کو. کس کو دیا؟ داماد کو بھی نہیں دیا. یہ بات داماد کو نہیں دیا, بھائی کو دیا. توجہ کریں, یہی ہے اس کی نزاکت. اگر داماد کو دیتے تو پھر آپ کھڑے ہوتے کہ میں بھی تو داماد ہوں, مجھے بھی چاہیے. رسول اللہ نے دیا تو مجھے بھی چاہیے. حضور نے داماد کو نہیں دیا, اپنے چھوٹے بھائی کو دیا. کیونکہ مولا علی داماد بننے سے پہلے رسول اللہ کے چھوٹے بھائی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے سگے چچا حضرت ابو طالب ہیں اور ان کی اولاد زیادہ تھی, تو رسول اللہ نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب سے کہا کہ چچا, میرے اس چچا کی غربت ہے, مفلسی ہے, بچے زیادہ ہیں, پرورش کرنے میں تکلیف ہے, ان کے گھر چلتے ہیں, ان کے بچوں کو ہم اپنی گود میں لے لیتے ہیں, گود لیتے ہیں اور ہم پرورش کر لیں گے تو میرے اس چچا کا بوجھ کم ہو جائے گا. تو حضرت عباس اور اللہ کے رسول چلے اور جانے کے بعد دونوں نے کہا حضرت ابو طالب سے کہ آپ اپنے بچے گود دے دیں. انہوں نے کہا طالب کو میں رکھ لیتا ہوں, جعفر کو عباس لے لے, اور علی محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں, اس وقت اعلان نبوت نہیں ہوا تھا, کہا محمد عربی کو علی دے دیتے ہیں. تو مولا علی جب دودھ پینے کی عمر میں تھے, اللہ کے رسول نے تبھی ان کو گود لے لیا تھا. تو علی کی پرورش کس کے گھر میں ہوئی؟ رسول اللہ کے گھر میں. آقا نے پرورش کی, آقا نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, آقا نے بولنا سکھایا, آقا نے جوان کیا. تو رسول اللہ نے علی کی پرورش کی بفرض محال. اگر علی مرتضیٰ کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو علی مرتضیٰ کی شادی کرنا کس کے ذمے پہ تھا؟ جس نے پالا تھا اسی کے ذمے, جس نے پرورش کی تھی اسی کے ذمے. اب مولا علی کا خود کا گھر تو تھا نہیں, تو رسول اللہ گھر کی ذمہ داری کس نے نبھانی تھی؟ حضور نے نبھانی تھی. تو آقا نے داماد کو جہیز نہیں دیا, چونکہ حضور نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے گھر میں پالا تھا, پرورش کی تھی. اب چھوٹے بھائی کی شادی ہو رہی تھی تو گھر کون سجانے والا تھا؟ اللہ کے رسول نے سجانا تھا. تو آقا نے گھر کے سارے انتظامات کیے. لوگوں کو یوں لگا کہ داماد کو دیا, لیکن اس نے اتفاق یہ ہو گیا جو چچا زاد بھائی تھا, سگے بھائی نہیں تھے, چچا زاد بھائی تھا, انہی کے ساتھ سیدہ فاطمہ کا نکاح ہو گیا. تو آقا علیہ السلام نے اپنی پرورش کی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے مولا علی کے لیے گھر کا بھی انتظام کیا, گھر کے سامان کا بھی انتظام کیا. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بھائی کے لیے انتظام کیا, تو میں بھی کہتا ہوں اگر آپ بھائی کے لیے اتنا خرچہ کرتے ہیں تو میں آپ کو سلام کرنے کے لیے تیار ہوں, اس لیے کہ رسول اللہ نے بھائی کو دیا, داماد کو نہیں دیا. کیونکہ علی مرتضیٰ جو تھے وہ رسول اللہ کے چچا زاد تھے, چچا زاد بھائی تھے. لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ سیدہ فاطمہ کو دیا. اگر سیدہ فاطمہ کو دیا تھا تو دوسری حدیث سن لے. ایک مرتبہ ایک عورت آئی اماں عائشہ کے پاس, اماں عائشہ نے اس کو ایک کھجور دی, اس نے برابر برابر تقسیم کی دو بیٹیوں میں. یہ دیکھ کر کے اماں عائشہ بہت خوش ہوئی. تو سرکار سے اس کی حضور ایک عورت نے ایسا کیا. آپ توجہ سے سننا, آقا فرماتے ہیں عائشہ وہ جو اس نے برابر برابر کھجور تقسیم کی نا, اگر دونوں بچیوں میں وہ برابر کھجور تقسیم نہ کرتی, کم زیادہ تقسیم کرتی, تو قیامت کے دن اس کھجور کی تقسیم کے بارے میں اس سے پوچھا جاتا. توجہ کر, ایک کھجور کی تقسیم میں اگر برابری نہ ہو اولاد میں تو ڈر ہے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اب مسلمانوں بتاؤ, حضور کی ایک شہزادی تھی بلکہ 4 شہزادی تھی. اب آپ کہتے ہیں رسول اللہ نے فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا, تو اب آپ کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ سیدہ زینب کو بھی جہیز دیا, ام کلثوم کو بھی جہیز دیا, حضرت سیدہ جو ہے وہ رقیہ کو بھی جہیز دیا. حضرت زینب کو جہیز نہیں دیا, رقیہ کو نہیں دیا, ام کلثوم کو نہیں دیا, صرف سیدہ فاطمہ کو دیا. یاد رکھنا, اس سے پتا چلا آقا نے جہیز نہیں دیا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ جہیز کی ظالم رسم جو تم کار طلب کرتے ہو, بائک طلب کرتے ہو, اور خدا جانے موبائل طلب کرتے ہو, لیپ ٹاپ طلب کرتے ہو, پتا ہے
میں यूपी गया हुआ था, मेरे एक दोस्त ने मुझे सफर में बताया कि हमारे घर की शादी हुई, लाखों रुपया खर्चा हुआ, अब भी हमारी बहन खुश नहीं है। मैंने कहा क्यों खुश नहीं है? तो कहा इसलिए खुश नहीं है कि वो चाहते हैं कि उनको कार मिले, खुल के बोलते नहीं लेकिन तानाजनी करते हैं, वो खुश नहीं है खिदमत करने के बाद भी। याद रखना मुसलमानों, आप किस मजहब पर अमल कर रहे हो? दीन हक कॉन्फ्रेंस रखते हो और बातिल के नजरियात को अपना रखा है। आपसे पूछता हूँ, जहेज क्या चीज है? अल्लाह अकबर। आज दर्द भरी बातें करते हो, मुसलमानों की बेटियां किसी और का हाथ पकड़ रही है, वजह क्या है? वजह सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह अकबर जालिम का जुल्म उरूज पर है, बल्कि उनसे पहले हमारी बेजा रसूमात ने गला घोंट दिया है। बड़ी माजरत के साथ जब आप भिखारी बन जाएंगे और आप शादी करने की बजाय भीख मांगने और डकैती करने निकलेंगे जहेज के नाम पर, तो गरीबों की बच्चियां 30-30, 35-35 साल की उम्र लेकर जब घरों में बैठेगी तो फिर क्या उनके कदम गलती की तरफ नहीं उठेंगे? ये जो अल्लाह अकबर नहरों के अंदर, दरियाओं के अंदर, समुंदरों के अंदर बेटियां डूब करके मर रही है, बच्चियां फांसी ले रही है, और नाम निहात दुनिया और माशरे के जिम्मेदारों, क़यामत के दिन मुस्तफा जान रहमत अगर आपका गिरेबान पकड़ करके पूछे कि जहेज की रस्मों की बुनियाद पर, शादियों की गलत रस्मात की बुनियाद पर मेरी उम्मत की बेटियां मजहब से बेजार हो रही थी, दुनिया से कूच कर रही थी, अपने आप को फांसी के फंदे पे लटका रही थी, आप क्या जवाब देंगे? क्या कार सब कुछ है, बाइक सब कुछ है? और मैं अपनी नई नस्ल से कहता हूं, जो शादी करने वाले उनसे पूछता हूं, जालिमों, नबी के नाम पर जान देने की बात करने वालों, बताओ जब तुम कार और बाइक मांगते होंगे और हुजूर की उम्मत की किसी बेटी का रिश्ता रिजेक्ट हो जाता होगा और वो 30-35 साल की उम्र में अपने बिस्तर पर सिसकती होगी, अपनी बिस्तर पर तड़पती होगी, तो रसूलुल्लाह के दिल पर गुंबदे खजरा में क्या गुजरती होगी? कभी सोचा हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल पर क्या गुजरती होगी? आप कहेंगे क्या गुजरती होगी? मैंने कहा सुन लो, हम मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ते, हम सुन्नियों का नबी जिंदा है। मेरा इमाम कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले नबी हमारी जान से ज्यादा करीब है। जमीन का जर्रा जर्रा, अपना अकीदा सुनो अहले सुन्नत का, जमीन का जर्रा जर्रा, चप्पा चप्पा, आसमान का तारा तारा, जो जहां है वो हर लम्हा रसूलुल्लाह की निगाह में है। हुजूर सबको देख रहे हैं, हर पल देख रहे हैं, हर लम्हा देख रहे हैं। उसकी दलील कहते हैं मेरे इमाम, शश चाहत समत मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल धूम वन नज्म में है। आपकी बीनाई की इसकी तशरीह नहीं करता, लेकिन याद रखना हर लम्हा दुनिया हुजूर की निगाह में है। ये महफिल अब भी हुजूर की निगाह में है, मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, हुजूर की निगाह में है। किस नीयत से बैठे हो? हुजूर की निगाह में है। क्यों बैठे हो? हुजूर की निगाह में है। क्यों आए हो? हुजूर की निगाह में है। वो देख रहे हैं गुंबदे खजरा से, बल्कि वल्लाह जिस्मानी तौर पे तो गुंबदे खजरा में है, लेकिन रूहानी तौर पर वो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। जो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ। मुझे हुआ क्या है? अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। अब आपसे पूछता हूँ, जब रसूलुल्लाह की उम्मत की बेटियां रिश्ते नहीं आने की बुनियाद पर, गलत रसूमात की बुनियाद पर, जहेज की बुनियाद पर जब बिस्तरों पे सिसकियां लेती होगी, उस वक्त तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? क्या गुजरती होगी बताऊं? आओ थोड़ा तसव्वुर करो। बद्र में 70 काफिरों को कैदी बनाकर लाया गया था। ध्यान से सुनना, हुजूर से मोहब्बत की बात करते हो, जुलूस में नारा लगाते हो, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नबी के नाम पे जान देने की बात करने वालों, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वालों, सारे नारे सर आंखों पर है,
लेकिन सुन लो, कारें मांगते हो, बाइक मांगते हो, शादी को महंगी कर दिया, गरीबों की बच्चियों की आबरू के जनाजे उठ रहे हैं, बच्चियां सिसकियां ले रही है। आओ, गरीबों की बच्चियों का ख्याल न करते हुए कम से कम अपने नबी का ख्याल तो करो, जाने ईमान का ख्याल तो करो, रूह कायनात का ख्याल तो करो, मुस्तफा जाने रहमत जिनका एहसान हमारे बाल बाल पर है, हमारी सांस सांस पर है, वो रसूल की शान देखो। बद्र के 70 कैदी बांध कर लाए गए हैं। आका ने फरमाया मस्जिद नबवी के सहन में इनको डाल दो। कोई जेल नहीं थी उस वक्त मुसलमानों के पास, कैदी जेल में नहीं रखे जा सकते थे। और आपको बताऊं, ये मेरे नबी की शान है, जो मुसलमान नहीं थे उनको कैदी बनाया। तो सरकार ने फरमाया एक एक कैदी को एक एक आदमी अपने जिम्मे पे ले ले, और जो तुम खाओ वो उसको खिलाओ, जो तुम पहनो वो कपड़े उसको पहनाओ। लेकिन याद रखना, बात पहली रात की है। बद्र से वापस आए, मस्जिद नबवी के सहन में सबको बांध कर डाल दिया गया। तवज्जो करना, और अगर माएँ और बहनें भी मौजूद हैं, सब मान जाते, औरतें नहीं मानती। कहती अभी तो बेटे की शादी, इस वक्त तो जो मिल जाएगा, आगे तो नहीं मिलेगा। भिखारा न बनो, सैयदा फातिमा की कनीज़ो ख्याल करो, सैयदा ज़ैनब की नाम लेवा ख्याल करो। भिखारन न बनो। कौन देगा, क्या देगा, रे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पहली रात बद्र के वापस आने के बाद मस्जिद नबवी के सहन में बद्र के कैदियों को बांध दिया गया था। और बांधने के बाद अल्लाह के रसूल बज़ाहिर थक कर अपने हुजरे में लेटे हुए थे, तो बद्र के कैदी रस्सी बंधने की वजह से आ कर रहे थे। दुश्मन जो लड़ने आए थे, सहाबा को मारने आए थे, जब उनकी कराहने की आवाज सुनी, हुजूर आवाज देते बिलाल। बिलाल हाजिर होते, लब्बैक या रसूल। आका फरमाते बिलाल, इन काफिरों की रस्सियां ढीली कर दो, इसलिए कि इनके कराहने की आवाज मुझे सोने नहीं दे रही है, इनके कराने की आवाज मुझे बेचैन और बेकरार कर रही है। मुसलमानों, अगर काफिर कराहे तो रसूलुल्लाह तड़प जाते हैं। जब 35 साल की वो बच्ची गुर्बत की वजह से, जिसको अच्छा रिश्ता नहीं आता, उसका बाप आपको भीख में कार नहीं दे सकता, बाइक नहीं दे सकता, जब वो बिस्तर पर बगैर शौहर के कराती होगी, तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी, आकाए करीम के दिल पे क्या गुजरती होगी। चैन से सोने वालों, आपसे कहता हूँ, ये दुनिया क्या है मेरे भाई? मेहनत की कमाई कब्र में नहीं ले जाओगे। जहेज के नाम पे भीख मांगकर वो क्या कब्र में ले जाओगे? कितने दिन तक कार चलेगी, कितने दिन तक बाइक चलेगी, कितने दिन तक टीवियां चलेगी, कितने दिन तक के ये लाखों रुपए की भीख चलेगी? एक बात जिम्मेदारी से कहता हूँ, मेरी कौम के जवानों, पैसे दौलत जहेज लोगे, एक दिन वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर रसूलुल्लाह की उम्मत की किसी बेटी की इज्जत की हिफाजत की नीयत से और हुजूर की खुशी की नीयत से किसी गरीब को बगैर जहेज के घर में ले आओगे, तो रसूलुल्लाह के करम की नजर उठेगी, तो वो कयामत तक तेरी नस्लों पर बाकी रहेगी। यहाँ भी खुश रहोगे, वहाँ भी खुश रहोगे। मेरी गुजारिश है, अगर झारखंड वाले जवानों सिर्फ नारों के गाजी हो तो हमें कोई दिल ठंडा नहीं है आपसे, और अगर अमल करने आए हो तो अपने नबी की खुशी के लिए जब जान कुर्बान करने की बात करते हो, तो आज हैत कर लो कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ दुल्हन लाऊंगा, उसके साथ कुछ नहीं लाऊंगा। साथ में होगी तो आपकी खुशियां होगी, आपकी रहमत होगी, आपका करम होगा, आपकी इनायतें होगी, और जिस पर उनकी इनायतें हो गई, याद रखना, इंसान देता है तो हैसियत के मुताबिक देता है, और महबूब खुदा देते हैं तो उसको देने वाला बना देते हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल लिल आलमीन। जबरदस्ती नहीं बोलो। आज की इस महफिल में कौन जवान हिम्मत करता है? मेरे लिए नहीं, अमीनुल कादरी के लिए, अपने नबी की खुशी के लिए। हुजूर देख रहे हैं, कौन हाथ उठाकर ये वादा करता है कि मैं सिर्फ दुल्हन लाऊंगा, साथ में कुछ नहीं लाऊंगा। सुसर उठा के रखो ताकि अल्लाह भी गवाह
गवा रहे, फरिश्ते भी गवा रहे। हुजूर गुंबद खजरा से देख रहे हैं, बगदाद से मेरा गौस देख रहा है, अजमेर मोहल्ला से गरीब नवाज। जरा हाथ उठा के रखें, इनकलाब आना चाहिए। जलसों का मकसद सिर्फ सैर और तफरी नहीं है। उठा के रखो, फरिश्तों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवा लो। कितने लोग हैं, सिर्फ दुल्हन लाऊंगा, जहेज साथ में नहीं लाऊंगा, सुसर देना भी चाहेगा तो कहूंगा तू जब चाहे तेरी बेटी को देना, शादी के मौके पे नहीं लूंगा। कितने लोग हैं, मुझे सिर्फ नबी की खुशी चाहिए, मुझे सिर्फ नबी की रजा चाहिए। ये रसूलुल्लाह देख रहे हैं। अल्लाह उठा के रखिए, थोड़ा ऊपर उठाइए, हो सके तो दोनों हाथ उठाइए। हाँ सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कुर्बान जाए। या अल्लाह, हाथ उठाना इनका काम है और इन हाथों का भरम रखना तेरी शान करीमी पर है। याद रखना, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ और ना मैं अपनी सियादत का, उठा के रखिए, ना मैं अपनी सियादत का झुनझुना बजाने का आदी हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, ऐ मेरी कौम के जवानों, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। अगर तुम मुझे करोड़ों रुपए भी देते, वल्लाह मैं इतना खुश ना होता। तो इस पर मैं खुश हूँ, इसलिए कि ये जितने हाथ उठे हैं, सैकड़ों मेरी कौम की बेटियों की आबरू महफूज हो जाएगी। याद रखना, मेरा उस खानदान से ताल्लुक है जिसमें नसब फातिमा और अली पे जाकर इंतहा को पहुंचता है। अगर अल्लाह ने कल मुझे कोई मकाम अता किया तो इन जवानों की जरूर मैं सिफारिश करूंगा कि या अल्लाह, तेरे महबूब की खुशी के लिए इन लोगों ने कौम की बेटियों की आबरू बचाने का वादा किया था। ये तो जिनकी शादी होने वाली वो, अब वो लोग बड़े लोग, आप हाथ उठा के रखिए, हाथ उठा के रखना है। लेकिन अब वो बड़े लोग जो अपने बेटों की शादी करोगे, तो कितने हैं कि मैं समधी से कोई जहेज नहीं मांगूंगा, ना मांगूंगा ना लूंगा। मेरे शहर माले गांव के अंदर जब ये शुरू हुआ, ऐसी शादियां शुरू हो गई है। लोगों ने कहा हम फकीर है क्या नहीं दे सकते? कहा तू फकीर है, अमीर है, तू जान, मैं बेटी के सिवा कुछ नहीं लेकर के जाऊंगा। हमारे शहर में सिलसिला शुरू हो गया है। झारखंड वालों, अल्लाह तुम्हें हमेशा आबाद रखे, बीबी ज़ारा की चादर के साए में रखे, रसूलुल्लाह की चादर करम के साए में रखे। अल्लाह जब तक चांद और सूरज निकलते डूबते रहे, इन हाथ उठाने वालों के घरों को खुशियों से आबाद। लेकिन